क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरम में द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ABCD देखिए ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD are bisect each other, that is OA equal to OC and OB equal to OD. We have to prove that ABCD is a parallelogram. We have given that ABCD is a quadrilateral in which the diagonals of a quadrilateral are bisect each other. मतलब bisect each other means OA equal to OC and OB equal to OD. We have to prove that ABCD is a parallelogram. तो देख लीजिए मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं AOD एंड ट्रायंगल ले रहा हूं मैं COB, क्या लिखा AOD और ट्रायंगल ले रहा हूं मैं COB। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल लिया मैंने COB। देखिए OA इक्वल टू OC गिवन, क्योंकि अपने को OA इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 vertically opposite angle, 1 is equal to 2 vertically opposite angle and OD equal to OB। ये भी आपका क्या बेटा गिवन, ये भी आपका गिवन। देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। वापस देख लीजिए अपने को दिया हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज OA इक्वल टू AOC एंड OB इक्वल टू OD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो देखो OA इक्वल टू OC गिवन, 1 is equal to 2 vertically opposite angle and OD is equal to OB also given। तो side in the sides of both triangle will be congruent। तो therefore CB series क्या करेंगे, एंगल 3 बना लेंगे यहाँ पर 4 and 5 and angle 6। तो angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6 by CB CT। If 3 is equal to 5 and 4 is equal to 6, that is alternate interior angles are equal, therefore lines are parallel, that is AD parallel to BC and AB parallel to CD, therefore ABCD is a parallelogram। हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में CPCT से 3 is equal to 5 प्रूफ कर दिया and 4 is equal to 6 by CPCT, that is alternate interior angles are equal, that is lines are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। देखिए a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equivalent pair। एक quadrilateral parallelogram हो जाएगा जब क्वेश्चन प्रूफ करना अपने को इसका वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, that is देखो A B लिख लो, A B यहां से स्टार्ट A B C and D। देखो A, B, C and D। इतना ABCD is a quadrilateral in which क्वेश्चन क्या बोल रहा है वन पेयर, तो मैं पेयर ले रहा हूं BC and AD। AD BC के इक्वल भी है और AD BC के पैरेलल भी है, इन विच AD इक्वल टू BC
parallel to BC. We have to prove that ABCD is a parallelogram. ABCD quadrilateral है. One pair of opposite sides are equal and parallel, that is ABCD is a parallelogram. अपना प्रूफ करना है. मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. Join AC. Join AC. प्रूफ कर रहा हूं. अब देखिए इसमें दो ट्रेंगल के पास में ट्रेंगल है ए सी डी और एक ट्रेंगल अपने पास में ए देखो मैं ट्रेंगल लगाऊंगा सुनो ध्यान से. ट्रेंगल लगाऊंगा बी ए सी और ट्रेंगल लगाऊंगा बी ए सी और ट्रेंगल लगाऊंगा डी सी ए. क्या समझ? ये भी ध्यान रखना ट्रायंगल लेना भी वो होगा. ऐसे आप ऐसे BCA ले लो तो B के बाद में क्या चल रहा है A फिर C तो यहां से स्टार्ट कर DCA. अब अपने को गिवन क्या है AD पैरेलल टू BC और AD इक्वल टू BCA. तो वन कंडीशन गिवन AD इक्वल टू BC we have to given AD इक्वल टू BC. बोथ लाइन विल बी पैरेलल. तो यहां पर मैं 1 लिख दूं यहां पर मैं 2 लिख दूं तो 1 is equal to 2 होगा कि नहीं होगा बेटा? क्यों? क्योंकि AD parallel to BC that is alternate interior angle. तो 1 is equal to 2 since given है AD parallel to BC therefore alternate interior angle. And third one is side angle. This side AC equal to AC. both triangles में क्या होगा AC दोनों में क्या बेटा? कॉमन. तो AC equal to CA को चाहे AC कॉमन. तो देखो क्या हो रहा है ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCA बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल. तो देयरफॉर CPCD से क्या हो जाएगा AB इक्वल टू DC क्या CD AB इक्वल टू DC बाय CPCD. एंड देखो ध्यान से समझना ये इसके इक्वल हो गए. अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 और यहां लिख रहा हूं मैं 4. 3 is equal to 4 AB by CPCD. If 3 equal to 4 that is alternate interior angles are equal therefore lines are parallel that is AB parallel to CD. आपने क्या प्रूफ किया? AB इक्वल टू CD प्रूफ कर दिया और AB पैरेलल टू CD प्रूफ कर दिया और वन पेयर अपने को दिया हुआ ही था. तो दोनों पेयर हो गए, दोनों पेयर इक्वल भी हो गए, दोनों पेयर पैरेलल भी हो गए. तो देयरफॉर क्या प्रूफ कर दिया अपन ने ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ओके देखिए मैं कर रहा हूं मिड पॉइंट थ्योरम. क्या कर रहा हूं? देखो यहां समझ ध्यान से. इसका स्टेटमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल कितनी साइड होती है? 3. कितनी होती है? 3 साइड. 3 साइड पर टू साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन जॉइनिंग करेंगे. टू लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है. देखो इफ ए लाइन joining the midpoint of two sides of a triangle. This line is parallel to third side of a triangle and equal to the half of the third side. वापस समझिए स्टेटमेंट. ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ABC. D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of side AC.
द लाइन इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम दोनों को ज्वाइन किया डी, तो क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ BC। लिखा ना, if a line joining the midpoints of two sides of a triangle, this line is parallel to the third side and equal to the half of the third side. This line is parallel to the third side and equal to the half of the third side. देखोगे D and E are the midpoint of side AB and AC respectively of triangle ABC. To prove DE parallel to BC and DE equal to half BC. DE parallel to BC and DE equal to half BC. कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। थ्रो D to F, D का तो पढ़ा आपने F तक, D to F such that DE equal to EF। मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि प्रोड्यूस DE to F such that DE और EF आपस में इक्वल हो जाए। ज्वाइन CF, ज्वाइन CF। वापस अगेन कि प्रोड्यूस DE to F such that DE equal to EF and join CF। हमें दो ट्रायंगल दिख गए, एक ट्रायंगल दिख गया ADE एंड ट्रायंगल CFE। तो ट्रायंगल यहाँ पर ADE एंड ट्रायंगल यहाँ पर CFE। देखो AE और EC आपस में इक्वल है बिकॉज E is the midpoint of AC। देखोगे AE equal to EC since E is the midpoint of AC and 1 is equal to 2 vertically opposite angle and DE equal to EF by construction। DE equal to EF by construction। तो साइड एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ADE congruent triangle CFE by SAS congruent rule। Therefore, by CPCT, AD equal to CF by CPCT and angle 3 equal to angle 4 by CPCT। If angle 3 equal to angle 4, that is alternate interior angles are equal। Therefore lines are parallel। कौन सी लाइन पैरेलल बेटा? AD पैरेलल टू CF। अपन ने AD को CF के इक्वल प्रूफ किया था कि नहीं किया था अभी? और क्या प्रूफ कर दिया? AD पैरेलल टू CF और D is the midpoint of AB। तो AD किसके इक्वल है बेटा? BD के। तो AD की जगह में क्या लिखो बेटा? तो यहाँ पे क्या होगा? BD equal to CF and BD parallel to CF since D is the midpoint of AB। अभी जस्ट पहले थ्योरम कराई कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता बेटा? पैरेलल। अभी जस्ट कराई। तो देखो BD CF के इक्वल भी हो गई और BD पैरेलल टू CF, तो अपना BCFD क्या बन गया अपना? जस्ट अभी प्रीवियस थ्योरम कराई मैंने कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां पर क्या होगा बेटा? BCFD is a parallelogram। क्या बन गया? BCFD is a parallelogram, that is DF equal to BC and DF parallel to BC। जब DF BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसी तो therefore DE parallel to BC। If DF equal to BC
BC के इक्वल है, DE और EF आपस में इक्वल है, तो DF को मैं 2DE लिख तो चलेगा कि चलेगा? तो यहाँ पर कहते हैं 2DE इक्वल टू BC, तो DE इक्वल टू हाफ BC। वापस समझ लीजिए, हमने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया बाय यूजिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत इजी है कि if a line segment joining the midpoint of two sides of a triangle, this line is parallel to the third side and equal to the half of the third side। कंस्ट्रक्शन किया, थ्रो या प्रोड्यूस DE to EF, DE को कहां तक पढ़ा है आपने? F तक पढ़ा है, such that DE equal to EF, join CF। दो ट्रायंगल मिल चुके हैं, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, AE इक्वल टू CE, क्योंकि E मिड पॉइंट है, 1 is equal to वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और DE is equal to EF by कंस्ट्रक्शन। तो बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय simplicity AD equal to CF and angle 3 equal to 4। तो 3 is equal to 4, that is alternate interior angles are equal, that is lines are parallel। तो AD parallel to CF, AD CF के इक्वल भी प्रूफ कर चुके हैं और AD पैरेलल टू CF और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD के इक्वल क्या आ जाएगा? BD, तो BD CF के इक्वल हो गया, BD पैरेलल टू CF। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर BCFD क्या बन जाएगा अपना? पैरेललोग्राम। जब BCFD पैरेललोग्राम बन जाएगा तो BCDF क्या पैरेलल हो जाएगी और BCDF के इक्वल हो जाएगी। तो BC और DE आपस में पैरेलल हो जाएगी और DE और EF इक्वल है, तो DF को मैंने क्या लिख दिया? 2DE इक्वल टू BC, तो DE इज इक्वल टू हाफ BC। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कर लीजिए आप। देखो लास्ट थ्योरम है आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसकी जस्ट ऑपोजिट। क्वेश्चन क्या हो रहा है? इफ ए लाइन is drawn if the midpoint of the line is drawn the midpoint of one side of the triangle, the line is drawn मतलब the midpoint of one side of a triangle parallel to another side and we have to prove that bisect the third side। मतलब यहां आपको एक ट्रायंगल है, समझ ध्यान से, यहाँ एक ट्रायंगल में एक लाइन है, वो एक मिड पॉइंट से होके जा रही है, ये B is the midpoint of side AB and DE parallel to BC, ठीक ना? D is the midpoint of side AB of triangle ABC and DE parallel to BC। We have to prove that bisect the third, that is AE is equal to EC। मतलब ट्रायंगल ABC है, D is the midpoint of side AB and DE parallel to BC and bisect the third, we have to prove that DAE is equal to EC। तो देखिए वही सेम कंस्ट्रक्शन लगाना, आपको DE को F तक आपको प्रोड्यूस करना है, that is DE is equal to EF and CF parallel to AB। क्या करोगे? DE equal to EF and CF parallel to AB, that is देखो ये पैरेलल प्रूफ करोगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और आप चाहो तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल कारण इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो सिंपलिसिटी क्या प्रूफ करो बेटा? AE is equal to EC। मैं वापस समझा रहा हूं, अपन कंस्ट्रक्शन करना है, DE is equal to EF such that DE is equal to EF and CF parallel to AB। We have to prove that both triangle will be congruent by angle side angle, therefore by simplicity AE is equal to EC।
यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है।